Hello everyone, welcome to Learners Everyday. Today we are going to study the first chapter of the book First Flight, that is A Letter to God. This is part 2 of the video. If you have not watched part 1, then please go and watch it first. I'll give the link of part 1 in the description box below. So let's get started. In the last video, we have read about लेंचो, जिसकी क्रॉप्स हेल्स की वजह से खराब हो जाती हैं. अब हम आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. सॉलिटरी मीन्स लोनली. सो वो जो वैली में एक लोनली हाउस था, उसमें जो लोग रहते थे, दैट मीन्स लेंचो और उसकी फैमिली, उन सभी के हार्ट में एक होप थी, दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड. Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. लेंचो जो है यहाँ पर बहुत पॉजिटिवली बात करता है. वो कहता है कि इतना अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक चीज़ याद रखो, कोई भी हंगर से नहीं मरता है. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Conscience means an inner sense of right and wrong. So पूरी नाइट लेंचो के मन में सिर्फ एक ही होप थी, दैट इज द हेल्प फ्रॉम गॉड, जिसकी आंखें सब कुछ देख सकती थी. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. An ox of a man means very hard working person. So लेंचो जो था वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन था, जो कि अपने फील्ड्स में एनिमल्स की तरह काम करता था, लेकिन उसको पता था लिखते कैसे हैं, मतलब उसको लिखना आता था. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. उसी संडे, डे ब्रेक मीन्स जैसे ही दिन स्टार्ट होता है, वो लेटर लिखना स्टार्ट करता है, जो फिर वो टाउन जाकर मेल करके आता है. एंड दैट इज अ लेटर टू गॉड. गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm and so on. So वो अपने लेटर में क्या लिखता है कि गॉड, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते हैं तो मेरी फैमिली और मैं भूख से मर जाएंगे. मुझे 100 पैसेस की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी फील्ड को दोबारा से सो कर सकूं, और जब तक नेक्स्ट क्रॉप आती है तब तक मैं अपना गुजारा कर सकूं. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. So वो जो है एनवेलप पे लिखता है टू गॉड, दैट मीन्स वो गॉड को लेटर पोस्ट कर रहा है. लेटर को उसके अंदर रखता है और टाउन में चला जाता है. वो पोस्ट ऑफिस जाता है, वहाँ से स्टैम्प लगाता है लेटर पे और उसको मेल बॉक्स में छोड़ देता है. वन ऑफ द एम्प्लॉयज who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Postman, जो कि पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय है, हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और अपने बॉस को लेटर दिखाया, which was written to God. Never in his career as a postman had he known that address. अपने करियर में उसने कभी भी ये एड्रेस नहीं देखा था. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." Amiable means friendly nature, and correspondence means communication by exchanging of letter. So postmaster, जो कि एक फैट और फ्रेंडली फेलो है, वो भी हंसने लगा, लेकिन फिर वो एकदम से सीरियस हो गया.
और उसने सोचा कि इस इंसान में कितना फेथ है गॉड के लिए कि वो गॉड के साथ लेटर द्वारा बात कर रहा है. सो in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. Goodwill means good gesture. So ये जो पोस्टमास्टर है उसने फिर सोचा कि लेंचो का विश्वास भगवान में बना रहना चाहिए, इसलिए उसने सोचा कि मैं लेटर को आंसर करूँगा. लेकिन जैसे ही उसने लेटर को खोला तो उसमें उसने देखा कि लेंचो ने उसमें 100 पैसे मांगे थे गॉड से. तो इस लेटर को लिखने के लिए इंक, पेपर और गुड जेस्चर के अलावा पैसों की भी ज़रूरत थी. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. Resolution means decision. लेकिन लेटर पढ़ने के बाद भी उसने अपना डिसीजन चेंज नहीं किया. उसने अपने एम्प्लॉयज़ से मदद मांगी, उसने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया और कुछ उसके जो फ्रेंड्स थे उन सब ने पैसे इकट्ठे किए. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. So इतने पैसे इकट्ठा करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था, तो फार्मर के लिए वो सिर्फ हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ही इकट्ठा कर पाया. उसने मनी को एनवेलप में रखा और सिग्नेचर में एक वर्ड लिखा, दैट इज गॉड. सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. विल कंटिन्यू द रिमेनिंग चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो, hit the like button and don't forget to subscribe the channel. Thank you.